Namaskar, good evening and a very warm welcome to Times Now's Election Yatra. The Election Yatra is currently in Uttar Pradesh in the Hindi heartland. They say that the road to Delhi, the power center Delhi, goes via Uttar Pradesh. With 80 seats in UP, this is going to be very, very crucial. The real battle is really going to play out in UP. Can the BJP repeat the performance that it did in 2019? What are the challenges in store? It's a double-engine Sarkar on one hand that is promised by the BJP, while on the other hand, the Congress and the SP have come together. How is that going to play out on the ground? What are the factors that work in favor of the BJP? We're going to be discussing all of that. We are in battleground Amethi, where an interesting battle is playing out. Smriti Irani wanting to retain this constituency in 2019. Remember, it was one of the biggest battles. This time around, there was a lot of hype around this constituency. Rahul Gandhi bowing out of the fight, and instead the Congress party nominating a non-Gandhi from this constituency for the first time in 20 years. What is the reason for it? How do the people here view it? Do they see this as the Gandhis fleeing from their bastion, or do they feel that their loyal worker has been given a ticket against Smriti Irani? Have they taken away the sheen from the battle or not? We're going to be discussing all of that, speaking to the people here in the constituency as well to find out what is the mood on the ground. Constituency that still gives a very rural feel. Development has taken a backseat over the last several years. कांग्रेस कब के हम सब वोट दिए भाई। स्मृति ईरानी ने बोला था 17 रुपए में चीनी दिलाएंगे अमेठी वालों को, तो हमें तो मिली नहीं आज दिन तक अभी तक। मोदी जी बेहतर है। अमेठी की जो पहचान है वो स्मृति ईरानी मोदी से नहीं है। अरे मैडम, तय भाजपा जय भाजपा, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बीजेपी ने किया क्या है? जब से भाजपा गवर्नमेंट है, या किसी भी रोड पे आप चले जाइए, सारे रोड बिल्कुल डेवलप है। महंगाई बेरोजगारी जो है वो बेतहाशा बढ़ रही है। सच्चाई ये है कि अपनी सरकार बदलेगी, यहाँ हवा नहीं मिलेगा। A glimpse of what the voters of the constituency believe. Remember, this is a constituency that has been synonymous with the Gandhi family for several decades now. Does that reflect in the development or not? Is that emotional connection still there with the people? In fact, when we spoke to some of the voters here, they also had some very interesting anecdotes about the Gandhi family and their association with this constituency. But we're going to be speaking about Uttar Pradesh overall. Today, Prime Minister Modi also filed his nomination from the Varanasi constituency, and while he filed his nomination, he said that the NDA is going to get 80 out of 80 seats here, saying that the Congress party is going to get a big zero here, which means not just Amethi, but the BJP also predicts a loss for the Congress party in Raebareli, where Rahul Gandhi is a candidate. Let's open this up. We have guests joining us this evening. Gobind Singh Chauhan, spokesperson of the BJP. We have Arvind Chaturvedi, media coordinator and district vice president of Amethi. And Pintu Yadav, SP leader, joining us on the broadcast. I want to begin with Gobind Singh ji. आज मोदी जी ने जब अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, उन्होंने ये कहा है कि 80 आउट ऑफ 80 आएगा। क्या अनुमान लगाया आपने? जी, जो मोदी ने कहा वही होने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब मोदी जी ने 10 साल में वो काम करके दिखाया है। भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया, तीसरी बनाने जा रहे हैं विद इन 2 इयर्स। तो देश तो उसी पे काम कर रहा है। विकास देखना चाहता है देश। अगर उसको विकसित भारत 2047 तक देखना है तो मोदी जी को पूर्ण बहुमत 400 पार करना है। अच्छा। और जब 400 पार होगा तो अमेठी 80 आउट ऑफ 80। अच्छा, मोदी 80 आउट ऑफ 80 का मतलब ये भी हुआ कि रायबरेली से भी कांग्रेस पार्टी हारेगी। यस। आपको क्या लगता है कि मोदी जी का ये प्रेडिक्शन है? मोदी जी का जैसे झूठ और जुमला हमेशा चला है,
वही झूठ और जुमला इसमें भी है, वही दिखाई देगा आगे आपको चल करके। हम 80 सीटों पे फाइट कर रहे हैं, 80 हम जीतेंगे। जहां तक अमेठी और रायबरेली का प्रश्न है, गांधी परिवार ने चिकित्सा, शिक्षा और सर्विसेज का, इंडस्ट्रीज का हब खड़ा किया है। आप जहां भी देखेंगे अमेठी में गांधी परिवार द्वारा किया गया विकास ही दिखाई देगा। संजय गांधी जी खिरौना से यहां शुरू किए थे श्रमदान, वो श्रमदान राजीव गांधी जी के सर तक पहुंचते पहुंचते, राहुल गांधी जी तक पहुंचते पहुंचते दसियों इंडस्ट्री के रूप में बदल गया। आप एक तरफ से उठा लीजिए, यहां अमेठी ऊसर कहा जाता था, राजीव गांधी जी ने इसको लहलहाते फसलों में बदल दिया, ऊसर को समाप्त कर दिया। साथ साथ जो इंडस्ट्रीज की शुरुआत उन्होंने की, वो राहुल गांधी तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 20, 22, 25 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे शिक्षा के हब है, ऐसे चिकित्सा के हब है, जिसने अमेठी की चमक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाई। इतना काम अगर कांग्रेस ने किया है तो फिर 2019 में कांग्रेस कैसे हार गई, राहुल गांधी कैसे हार गए? नाम सुन ले, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, FTDI, मुंशीगंज हॉस्पिटल, जिसको हमारी वर्तमान सांसद ने बंद करने का काम किया, हम कोर्ट से लेकर के आए, कोर्ट ने हमको रिलीफ दी। ठीक है। साथ साथ CRPF सेंटर, इंदिरा गांधी विमानन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, और जो सबसे बड़ा काम पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक विद्यालय। साथ साथ हमने किसी भी ग्राम सभा में आप चले जाइए, किसी ब्लॉक में चले जाइए, गांधी परिवार द्वारा दी गई सड़कें, गांधी परिवार द्वारा दी गई नहरें, गांधी परिवार द्वारा दी गई लाइट आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे गांधी परिवार के कोई क्यों नहीं लड़ रहे हैं इस बार? गांधी परिवार ने अपने सबसे विश्वस्त, जिसने 40 साल तक इस अमेठी की सेवा की है गांधी परिवार के साथ रह करके, और जिसने जितने भी विकास के हब खड़े हुए हैं, जितने भी विकास की को गति मिली है, उस विकास को गति दिया उन्होंने। जितनी इंडस्ट्री खड़ी हुई, जिनसे चाहे इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल हो, चाहे मुंशीगंज हॉस्पिटल हो, चाहे CRPF सेंटर हो, उन सब में इनका योगदान शुरू से लेकर के। आपको मैं एक जानकारी दे दूं, पहले यहाँ प्रोटेक्शन उससे की वजह से कम होता था। राजीव गांधी से लोगों ने कहा, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि इस ऊसर को पूरे लहलहाते फसलों में बदला। उस समय से शुरुआत की थी हमारे जो वर्तमान। ठीक है, आपने जो हमने गिनवाए हैं ना, आपने जो इतने गिनवाए हैं ना, कितने काम हो चुके हैं यहाँ पे, अगर आप कह रहे हैं कि लोगों को ये पता है, तो फिर 2019 में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी यहाँ से कैसे हार गए? देखें, जब 13 रुपए किलो चीनी बांटी जाएगी, 15 लाख रुपयों की बात होगी, और साथ साथ 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, तो कुछ न कुछ लोग कभी कभी कि भाई अगर 13 रुपए किलो चीनी मिल रहा तो इनसे बढ़िया कौन है, 2 करोड़ रोजगार दे रही है। जब आप झूठ और जुमलों को परोस देंगे चारों तरफ, तो झूठ और जुमले से जीती है बीजेपी। यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ है, जो कुछ विकास आप देख रहे हैं यहाँ पे वो गांधी परिवार ने किया है। इतनी विसंगति है इनके भाषण में। एक तरफ कह रहे हैं संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी तक बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी है। अरे भाई, अगर उन्होंने लगा दिया तो 40 साल यहाँ के सांसद रहा उनका परिवार। ये 15 साल में राहुल गांधी ने कौन सी फैक्ट्री लगाई, कौन सा शिक्षा का हब खोला, कौन सा हॉस्पिटल खोला, जिसकी वजह से हार गए? अभी मैं आपको 2022 का रिजल्ट बता देता हूँ। विधानसभा का 5 यहाँ से मिली सीटें आउट ऑफ 5, माने इन पार्लियामेंट अमेठी। 4 में इनकी जमानत जब्त है। इनसे पूछिए क्यों जब्त है, इतना बड़ा काम किया था। और 1 में किसी तरह बच गई। 3 भाजपा के पास हैं, 2 सपा के पास। वो 2 जो सपा वाले थे वो प्रैक्टिकली तो इधर आ गए, टेक्निकली पिंटू यादव की तरफ है। अब इनको देखना चाहिए, इनके पास कुछ बचा नहीं, इसीलिए राहुल गांधी भाग गए। और 2019 की जो पराजय थी उनकी काम न करने की उसके कारण हुई थी। वो 15 साल में मुझे तो लगता है 15 बार भी नहीं आए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 14 में दीदी स्मृति ईरानी यहाँ हारी, लेकिन लगातार यहाँ वो बनी रही। भाई 19 हारे थे तो हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है। आपको 19 से 24 तक आना जाना था, यहाँ संबंध बनाना था, लेकिन वो बनाए नहीं पाए इसी डर से। तो इसका क्या जवाब देंगे कि राहुल गांधी यहाँ से हार गए तो हार गए, लेकिन संबंध बनाए रखना चाहिए था उनको? संबंध बनाए रखा, तो इस बार यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे? संबंध बिल्कुल बनाए रखा। एक घटना बहुत बड़ी हो गई थी यहाँ पे, एक परिवार के 6-7 लोग की डेथ हो गई थी अमेठी से थोड़े दूर के पहले। जैसे ही गांधी परिवार ने सुना, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तुरंत उनके आवास पर पहुंची। कोरोना काल सबसे संकट की घड़ी थी, उसमें राहुल गांधी जी ने
व्यक्तिगत रुचि लेकर करके खाद्यान्न का ट्रक भेजा, मास्क भेजे, दवाइयां भेजी। और जो सेकेंड वेव था वो और खतरनाक था। तो फर्स्ट वेव में हमारे जो जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, जब लॉकडाउन लगा था, सबको साथ लेकर के हम लोगों को लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि इतना काम किया, बोल रहे हैं कि अभी भी रिश्ता बना हुआ है, तो फिर यहाँ से लड़ क्यों नहीं रहे? वो रिश्ता जो बना हुआ, मैं बता दूं, जैसे कोई जरूरत पड़ती है, कोई भी परेशानी में अमेठी होती है, कोई भी भावनात्मक दिक्कत, कोई दिक्कत होती है, राजीव गांधी जी का प्रतिनिधि या खुद वो या खुद सीधे वार्ता करके उनको चलाता। आप तो जा रही हैं, आपको राहुल गांधी की लीडरशिप पे पूरा भरोसा है, बस यहाँ से अमेठी से नहीं रायबरेली से लग रहे हैं। सेकंड में बहुत खतरनाक था। ऑक्सीजन और कंसेंट्रेटर उन्होंने स्पेशली भिजवाया। लेकिन आप जिस काम की बात कर रहे हैं, अगर आप उतना कॉन्फिडेंस होता तो यहाँ से राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ रहे? वही सवाल आता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पिंटू यादव जी, राहुल गांधी के ऊपर पूरा भरोसा है, यहाँ से भी वो जीत जाते, लेकिन वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। एसपी की अगर हम बात करें, अगर कांग्रेस पार्टी ने बिफोर जब सीट शेयरिंग अलायंस की बात हो रही थी, तो एसपी ने भी काफी सवाल उठाए थे कांग्रेस पार्टी पे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को यूपी में इतनी जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ विच यू आर कंटेस्टिंग ऑन 62 सीट्स, सीटिंग वेरी फ्यू सीट्स टू द कांग्रेस पार्टी। देखिए, अमेठी की माननीय सांसद जो स्मृति ईरानी जी हैं, उनको कांग्रेस इतना महत्वपूर्ण नहीं मानती। वो उनको अपना कार्यकर्ता ही हराने के लिए काफी है। केएल शर्मा जी हरा देंगे, राहुल गांधी की जरूरत नहीं है उनको हराने के लिए। तो इस पे बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। और भागने के लिए चांदनी चौक से भी भागी थी वो। हारने के बाद कोई ये कहां से लड़ता है, पूरा भारत देश है, कहीं से भी कोई भी लड़ सकता है। मोदी जी गुजरात से आके लड़ रहे हैं, ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। बहस का मुद्दा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 5 हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, प्रशासन और पुलिस, यही चुनाव लड़ रहे हैं। जनता बनाम सरकार चुनाव हो रहा है। अब की बार जनता पूरी तरह से वोट कर रही है इंडिया गठबंधन को, और ये 80 के 80 हारेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, 80 के 80 हारेंगे। आपके साथ ईडी, सीबीआई सारे सेंट्रल एजेंसी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि स्मृति ईरानी यहाँ से लड़ रही है, वहां पे तो गांधी परिवार को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, कार्यकर्ता काफी है उनको हराने के लिए। अब इनको मैं क्या कहूँ, इनके जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, अभी उन्होंने एमपी में क्या कहा था, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। अबे आज कांग्रेस के साथ खड़े, ये 19 में भी उनके साथ खड़े थे, जो हमने हराया था राहुल गांधी को, ये उन्हीं के साथ खड़े थे। इनका कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं था, ये कभी यहाँ नहीं लड़ते। एक जरा या लिखित समझौता था, इस बार तो हो गया। और 17 का मैं इनका समझौता बता दूं, जब दोनों लड़के साइकिल पर सवार हो गए, 7 सीटें उनकी, 42 से 43 सीटें अखिलेश जी की। मुलायम सिंह ने डांटा था कि तुमने नाश कर दिया पार्टी का, समाजवादी पार्टी का। इनको पिंटू यादव को तो मेरी सलाह है, इनको अगर मुलायम सिंह को अपना नेता मानते हैं, तो सदन के अंतिम सत्र में जो मुलायम सिंह ने मोदी जी को कहा था आशीर्वाद देते हुए कि आप दोबारा चुन के आइए, इनको उस पर काम करना चाहिए। कहाँ ये कांग्रेस के चक्कर में फंस गए। आप देखिएगा 4 जून के बाद 6 दिन के अंदर इनका फिर विच्छेद हो जाएगा, इनका फिर तलाक हो जाएगा। गारंटी लिखा लीजिए। जैसे अच्छा, गारंटी क्या है कि कांग्रेस और एसपी साथ में रहेगी? क्योंकि सीट शेयरिंग की भी जब बात हो रही थी, तो काफी बार अखिलेश यादव जी ने भी राहुल गांधी के बारे में कहा था, वो तो इतने बड़े नेता नहीं, ऐसे बयान आते रहते हैं एसपी की तरफ से। देखिए, कोई नई बात नहीं है गठबंधन में। इनके भी गठबंधन में बहुत सारे बातें आई। संजय निषाद ने क्या कहा, प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा, आरएलडी ने क्या कही, बातें कही है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति अपना हक और अधिकार लेने के लिए बातें करता रहता है। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा ये जो छुट्टा जानवर टहल रहे हैं, ये मुद्दे हैं। इस पे चुनाव हो रहा है। ये राम मंदिर ले जाएं, मंगलसूत्र पे ले जाएं, कोई भी जुमला फेंकें, अब की बार काम करने वाला नहीं है। अब की बार जनता पूरी तरह से मन बना चुका है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। ये 200 से ज्यादा सीटें नहीं पाएंगे, 200 से ज्यादा। अच्छा, 200 से सीटें ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। इन्होंने कहा कि राम मंदिर मुद्दा ही नहीं है। आपको लगता है कि राम लहर है यहाँ पे स्टेट में या नहीं? क्योंकि राहुल गांधी ने भी अमेठी में भी कहा था कि यहाँ पे लोग राम राम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई जॉब्स नहीं, उनको कोई यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। वो सच्चाई राहुल गांधी जी ने कही थी कि सही मायने में बेरोजगारी 45 वर्ष से सबसे बदतर स्थिति में है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 30 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको हमने देने का काम किया है। हमने देने के लिए कहा है, जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी गठबंधन की, और साथ साथ 1 लाख रुपए अप्रेंटिस के लिए। मैं एक जानकारी और दे दूं आपको, IIIT, मुंशीगंज हॉस्पिटल और साथ साथ मेगा फूड पार्क और पेपर मिल, जिससे हजारों नौजवानों को नौकरियां मिल सकती थी, उसको तो हमारी वर्तमान सांसद ने बंद करने का काम किया ही। साथ साथ 5 मंत्रालय रहे हैं हमारी सांसद के पास, मिनिस्टर हैं वो।
पहला मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, दूसरा कपड़ा मंत्रालय, तीसरा आपसे संबंधित सूचना प्रसारण मंत्रालय, चौथा महिला और बाल विकास मंत्रालय और पांचवा माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री है इनके पास। एक भी अगर इन्होंने कोई भी नौजवानों के लिए, नौकरियों के लिए कोई इंडस्ट्री डाली हो, अच्छा, इन्होंने क्या काम किया है उसकी बात करेंगे। डेवलपमेंट किसने किया है? बीजेपी ने किया है कि कांग्रेस ने किया है? आप he'll respond. We need to slip into a very quick break here. We'll come back with that response coming in. The question from the Congress party being, as a minister, as a union minister, what has Smriti Irani done in the constituency? What is the work that she has done? Saying every road, every development, every industry that you're seeing in Amethi has been brought by the Gandhi family with zero contribution from the BJP. The BJP responds to this after a very quick break. Do stay with us. Welcome back. We are in one of the most hotly contested seats this Lok Sabha election. We are in Amethi, where a non-Gandhi has been fielded by the Congress party against Smriti Irani. How is the battle going to play out? That's what we're discussing, and the development work that has been done in the last 5 years. We've spoken to the voters. Before we play that out, let's go back into the political fight that's playing out. As Raebareli seat was confirmed for Rahul Gandhi, Prime Minister Modi had an advice for the Congress leader. He said, डरो मत, भागो मत. Here's what he said. लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता. ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत. मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत. और राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया. ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है. और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला. So is this the perception that the BJP wants the Congress party to have? That's the question. मोदी जी कह रहे हैं कि डर के भाग गए, अब अमेठी से भाग गए, रायबरेली का रास्ता ढूंढ रहे राहुल गांधी. आपको लगता है कि परसेप्शन वाइज कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का डिसीजन रायबरेली से जाना कुछ राहुल गांधी जी डरते नहीं हैं. ये डरे हुए तानाशाह की आवाज है. जो 400 जो पार बोला करते थे, वो बोलियां बंद हो गई हैं. अब सीधे सीधे अपने एजेंडे पे अडानी अंबानी का झटके में नाम ले रहे हैं कि टेम्पो में आ रहा है, जिसकी जानकारी उनको ज्यादा होगी. और दूसरी चीज कि वो डरा हुआ तानाशाह ये है कि जो तुरंत अपने एजेंडे पे आ गया. पाकिस्तान अपने आप आ गया, एंट्री हो गई पाकिस्तान की. जब 3 फेज के इलेक्शन हो गए, 4 फेज के इलेक्शन हो गए. जब बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी भाग गए, आपको लगता है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि वो शायद अमेठी को छोड़ दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है. अमेठी की जनता राहुल गांधी जी के नाम पे लड़ाई लड़ रही है. जो उन्होंने अपने हनुमान को यहाँ भेजा है, आदरणीय किशोरीलाल शर्मा, जो जन जन में प्रिय हैं, जिनको सभी जनता पहचानती है, सब उनको जानते हैं, वो खुद सबको जानते हैं. सबकी किसी न किसी रूप में सहायता की है. इसे चुनाव सही मायने में राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं. अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो कह रही है कि राहुल गांधी यहाँ से भाग गए, क्या उनको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए था? एसपी की तरफ से उनको क्या कुछ सलाह दी थी आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है ये सब कहना, डरो मत, भागो मत, जबकि प्रधानमंत्री जी खुद डर रहे हैं. डर न रहे होते तो अडानी अंबानी जी का नाम न लेते. टेम्पो में बता रहे हैं, टेम्पो. अब इनको कैसे जानकारी होगी टेम्पो में काला धन जा रहा है? अरे भाई, काला धन के नाम पे आप सरकार बनाए, आप काला धन नहीं ले आ पाए. कहीं काला धन बता रहे थे कि आप विदेशों में स्विस बैंक में जमा है, कहाँ जमा है, काला धन ले आ रहे थे. आज लाइए ना, इंतजार कर रही है देश की जनता. आप काला धन ले आते, देश को देते, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई जुमला फेंका इन्होंने. ये जुमला आपकी बार भी फेंक रहे हैं. सही मंगलसूत्र चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है.
2014 में जो सोना 25,000 रुपए में था वो अब 75,000 में पहुंच चुका है। सही मंगलसूत्र चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी लेकिन की आपको सरकार इतना ने कॉन्फिडेंस था कांग्रेस पार्टी पे, तो फिर ज्यादा सीटें क्यों नहीं दी कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बातों में हम लोग आने वाले नहीं हैं। हम लोग जो जितना है, कोई ये मुद्दा ही नहीं है कि हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, राहुल जी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, उस पर लड़ाई है। महंगाई, बेरोजगारी हम लोगों को भगाना है। टोटल नंबर कितना देंगे अब एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस को यहाँ यूपी में? मैं कह रहा हूँ यूपी में 80 की 80 हार रहे हैं इंडिया अलायंस। मोदी जी का चुनाव फंसा हुआ है, अगर फंसा न होता तो ये नामांकन पूरी तरह से करने देते। वहाँ बनारस में नामांकन नहीं होने दे रहा है वहाँ का डीएम। इतनी तानाशाही व्यवस्था हो गई है कि वहाँ का डीएम नामांकन नहीं होना दे रहा है। श्याम रंगीला जैसे कॉमेडियन का नामांकन नहीं होने दे रहा है। तो फिर मोदी जी ने तो बोला है कि एनडीए को 80 आउट ऑफ 80 आएगा, कांग्रेस को 0। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस और गठबंधन हमारा 80 सीट जीत रहा है। हमने वो योजनाएं दी हैं जो आम जनता तक पहुंची, चाहे मनरेगा हो, चाहे खास सुरक्षा कानून हो। जो 5 किलो ये बांट रहे हैं वो हमारा पीडीएस सिस्टम था जिसको ये बांट रहे हैं। मिल रहा है, इसका मतलब बीजेपी को 0। क्या उत्तर देंगे आप? दोनों के बराबर समय दीजिए। अभी वो बड़ा भाषण कर रहे हैं हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय। क्या ये वही लोग हैं जब मुजफ्फरनगर जल रहा था सैफई में नंगा नाच जवाब दीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोले तो मैं नहीं बोला। जल्दी 30 सेकंड हमारे पास वक्त कम है, आप जल्दी बोलिए, जवाब दीजिए। वर्तमान की बात करिए, आप वर्तमान की बात करिए। 30 सेकंड में आप बताइए। प्रदेश में सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, जवाब आपसे बनता है। बोला क्या? उनको कहने दीजिए। आप बोले तो मैं बोला क्या? इतिहास में न इतना तो कम से कम इतना तो बात करिए। अच्छा, होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, ये तो लोग याद रखेंगे, वोटर जो इनके उनको तो याद रहेगा। मुझे बोले दोनों लोग, मैं बोला क्या? रुक जाइए, आप बताइए। साइलेंट रहिए। 80 सीट्स में यूपी में बीजेपी एनडीए को कितना मिलेगा? एनडीए को 80 आउट ऑफ 80 में सीट के नंबर सुने जाता। हम तो 400 पार कर रहे हैं। 400 पार। कितनी सीटें थी इनकी दोनों के मिला के? 4 थी। ठीक है, चलिए 400 पार। इस बार आप कह रहे हैं कि 2019 से बेटर परफॉर्मेंस होगा इस बार बीजेपी का। और द डिबेट कंटिन्यूज हियर, ऑफ कोर्स there's a lot to talk about, but unfortunately we're running out of time. We're speaking to the voters as well. Remember, it's the voters who are going to decide who is going to govern not just a constituency but also across the country. We've spoken to the voters, very interesting anecdotes about the Gandhi family as well. We're coming back with that after a very quick break. Thank you all for joining us. We'll be right back after a short break. We're in the Amethi Lok Sabha constituency. This is in fact the main railway station in Amethi that was inaugurated by Rajiv Gandhi in 1984. This is one of the VIP constituencies which has been in the news. Every voter across the country perhaps knows about the Amethi constituency because this has been a constituency that has been represented by the Gandhi family for the last several decades. Until 2019, when Smriti Irani of the BJP became the giant killer who defeated Rahul Gandhi from the constituency. This time, for the very first time in over 20 years, a non-Gandhi is the candidate of the Congress party from the constituency. When we arrived here, one of the first impressions, even though it's a VIP constituency, is that this is a town that needs a lot more of development. There are a few colleges, some hospitals, but the basic needs of the people is the main issue here that the voters are voting for. Are they happy with 5 years of Smriti Irani? Are they looking for a change or not? Let's find out from the voters themselves. The Amethi constituency has never elected a non-Congress candidate twice. Since 1967, only 3 times did the Congress lose from here. Once to the Janata Party in 1977 and then to the BJP in 1998 and 2019. The constituency was always considered a Congress stronghold and has had the Gandhis contest from here since 1980. This time, Smriti Irani looks to become the first non-Congress MP to win her second consecutive election from here. We're in Jammu in Amethi. Big campaigns going on both sides. It's the first time that a non-Gandhi face is contesting from the Congress party in 20 years. Smriti Irani confident that the work that she has done in the last 5 years will ensure her comeback this time around as well. Let's speak to the people and find out what is the mood like on the ground. यहाँ पे कैसा election का माहौल कैसा चल रहा है? किस पार्टी ने अच्छा काम किया है?
अरे यहाँ सब भाजपा देखत यहाँ तो हल्का मचा दे है कांग्रेस कब के हम सब वोट दिए भाई। So you heard it from the candidates and of course the voters as well. अच्छा नहीं कि हमारे यहाँ तबाही मचा दे है। अच्छा, लेकिन यहाँ से इस बार राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या? गांधी नहीं, एक ठू कुकुर लड़ा दिए तब वो वही वोट दिए हम सब। कांग्रेस पे हाँ। वोट देंगे। ऐसा क्यों? आप खुश हैं जो कांग्रेस ने जितना काम किया? देखत यहाँ 170 रुपए किलो दाल पहुँच जाती है यहाँ। 17 रुपए में चीनी मिल रही है हम लोग को अमेठी में, तो चीनी खा रहे हैं। इसके लिए कारण कौन है, भाजपा या फिर कांग्रेस? स्मृति ईरानी ने बोला था 17 रुपए में चीनी दिलाएंगे अमेठी वालों को, तो हमें तो मिली नहीं आज दिन तक अभी तक। 17 रुपए 42 रुपए में खा रहे हैं। और बाबा रामदेव ने बोला था कि 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 105 रुपए में बिक रहा है, तो कैसे माना जाए? तो कांग्रेस ने अच्छा काम किया? बिल्कुल अच्छा काम किया है। कांग्रेस वापस चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, परिवर्तन तो होना चाहिए। तो पिछली बार स्मृति ईरानी जी कैसे जीत गई यहाँ से? अरे जीत गई, तुक्का है, चल गया उनका, तुक्का था चल गया। तो इस बार गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ रहे हैं, उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा? और किशोरीलाल शर्मा लड़ नहीं रहे हैं, राजीव गांधी के साथ के जमाने के टाइम से वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा करेंगे। अच्छा, आपको भी ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी? अरे भाई इतने दिन से उनके साथ में रहे, उन्हीं के लाया ये सब है। ये रोड आज जो बना है सब राजीव गांधी के ही जमाने का है, ये भाजपा थोड़ा बना दी। ठीक है, चलिए देखते हैं सबको। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है? और आप स्मृति ईरानी जी कंटिन्यू करें वो चाहते हैं या वापस कांग्रेस को चाहते हैं? नहीं, यहाँ कांग्रेस आएगी। हाँ, कांग्रेस को चाहते हैं हम लोग। कांग्रेस को चाहते हैं। अमेठी की जो पहचान है वो स्मृति ईरानी मोदी से नहीं है, वो गांधी परिवार से है, राजीव गांधी से थी, राहुल से है, प्रियंका से है। तो ऐसा है तो राहुल गांधी इस बार यहाँ से नहीं लड़ रहे, उसका दुख है थोड़ा? नहीं, दुख बिल्कुल नहीं है। ये उनके वफादार सिपाही हैं राहुल जी के, हम लोग उनके साथ हैं पूरी तरह तन्मयता से है। कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। अच्छा, तो गांधी परिवार से नहीं है, लेकिन वो उनके फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई दुख नहीं है कि वो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेन मुद्दा है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है और यहाँ पे और विकास ज्यादा होना चाहिए। बहुत ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल विकास है ही नहीं यहाँ पर। मोदी जी जब कैंपेन कर रहे थे उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी का उम्र जितना है उससे कम सीटें आएंगी कांग्रेस को। ये तो कहने वाली बातें हैं, हम कह रहे हैं कि अब उनकी ज्यादा आएंगी, मोदी की कम आएंगी, ये तो कहने वाली बातें हैं। इलेक्शन होगा, उसके बाद जो बैलेट पेपर से वोट होगा या उस ईवीएम से होगा, जो आगे आएगा 4 जून को सामने आ जाएगा, कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा सब क्लियर हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी पिछले बार स्मृति ईरानी जीत गई होंगी, लेकिन इस बार देयर आर पीपल हु आर वांटिंग अ चेंज। आप लोग यहाँ अमेठी से हैं, बताइए यहाँ कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है, आप कौन चाहते हैं यहाँ से सांसद? जितनी पार्टी आई थी यहाँ केवल कांग्रेस जो भी है आजकल कांग्रेस का बनाया हुआ है। यहाँ पे जो भी पास हुआ, ये रोड भी पास हुई मैम, देखिए इस रोड जो पास किया था ये भी कांग्रेस का बनाया हुआ है। यहाँ जो भी हो रहा है, संजय गांधी पॉलिटेक्निक है बेचल में, वो भी नहीं का है, इंडस्ट्रियल एरिया बेचल का है, वो भी संजय मतलब कांग्रेस का ही है। मैम यहाँ जितना चीज है सब कांग्रेस का है, बस केवल एक चीज नहीं दे पाए, जो साढ़ है बस मैम यही। अच्छा, तो फिर अभी स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद कैसे बन गए? आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ कांग्रेस से बहुत खुश थे, तो 2019 में जब वो जीती 50,000 वोटों से ज्यादा गैप था, तो क्या हो गया था? मैम हो सकता है कभी कभी इंसान एक चीज के पीछे फोकस करते हैं लोग, जो उसके पीछे अगर आज कोई नहीं दिखता, ये भी तो हो सकता है। गलती कर दी इस बार कौन मैम? यस मैम, इस बार कांग्रेस जरूर आएगी। तो फिर राहुल गांधी यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे, उसका कुछ गुस्सा है? देखिए मैम, एक होता है अपना अपना, जैसे लोग जैसे कांग्रेस अब यहाँ स्मृति ईरानी लड़ रही है ना, अपने पार्टी को ताने ले, क्या पता ये भी किसी दूसरे को मानती हूँ, है जाहिर बात है। इसके पीछे ऐसा कोई नाराजगी नहीं है कि राहुल गांधी नहीं लड़ रहे थे? आप लोगों को क्या लगता है? बस मैम राहुल गांधी तो वो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, उसका कुछ नाराजगी है? नहीं मैम, कोई नाराजगी। यहाँ आप कुछ बहुत लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार का ये आइडेंटिटी है, लेकिन वो इस बार यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। We heard from the people here, some of them wanting a change, some saying that it's a Congress party's identity here and that should continue. Whether there's a Gandhi face from here or not does not matter. They want the Congress party's legacy to continue from Amethi. What may be a concern for the Congress is the rising vote share for the BJP in the last few elections in Amethi. In the 2019 elections, Smriti Irani won with a vote margin of over 5%. In 2022, the BJP secured about 41% of the vote share in the assembly segments that falls in this Lok Sabha constituency, with the Congress coming at a distant third with 14.3%. So Amethi, despite being the VIP constituency, gives the feel of rural India. The roads are wide, yes, but in terms of development, there hasn't been much that has happened here. I have with me joining some of the school girls here, like several of the voters mentioned, education,
unemployment. These are some of the key issues that are main here in the Amethi constituency. This time around, Rahul Gandhi not contesting from here. Does that take the sheen away from the Amethi battle or not? That's the question. Who is KL Sharma? Is it an insider versus outsider battle in Amethi or not? These are the questions we're going to be asking to the people of Amethi. Let's find out from them what are the key issues and whether they see it as a big battle or a battle for the key issues that actually matter to them. आपको क्या लगता है? मैडम, कांग्रेस अपनी अपनी जगह पे सब सही है, लेकिन जैसे विदेश नीति और देश को आगे बढ़ाने के लिए तो मोदी जी बेहतर है। बाकी तो ठीक ठाक है सब। हम तो गुजरात में रहते हैं, गुजरात से हैं, मतलब रहते हैं। लेकिन विदेश नीति और जैसे देश को देश को आगे बढ़ाने के लिए तो मोदी जी गुड है, गुड जी। अच्छा, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी चाहिए देश में, आप कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की पहचान है अमेठी, यहाँ पे अमेठी में अच्छा काम किया है। आप कह रहे हैं आप गुजरात से आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है? वहाँ पे जो आपने देखा है डेवलपमेंट, विकास जो देखा है, यहाँ पे जो देखा है, आपको क्या लगता है? डेवलपमेंट तो अच्छा। अब यहाँ पे छोटे छोटे जो नेता लोग हैं या कि जो भी यहाँ के जिसके ऊपर जवाबदारी दी जाती है, उन लोगों को अच्छी तरह से काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं वही कमी की वजह से कुछ लोग बीजेपी से खफा हो जाते हैं। बाकी तो ठीक ठाक है, लेकिन वो छोटे जो जिन लोगों को यहाँ की जवाबदारी सौंपी जाती है, वो लोग कहीं ना काम करने में या कि व्यवस्था पहुँचाने में, रोड या गांव में कहीं कहीं गांव में पूरी व्यवस्था नहीं होती, रोड नालियाँ नहीं बन पाती। इसके लिए बीजेपी से थोड़ा खफा है। उससे खफा होना चाहिए बीजेपी से या कांग्रेस से, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तो कांग्रेस बीजेपी से खुश हैं लोग, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो व्यवस्थित रूप से पब्लिक को संतोष नहीं कर पाते। मैडम रुकिए, मैं आपके पास भी आती हूँ, 1 मिनट आप जगह देंगे, मैं एक बार उनसे भी बात कर लेती हूँ। आपको क्या लगता है? कुछ लोग कहते हैं कि अमेठी कांग्रेस की पहचान है, आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी पार्टी ने अच्छा काम किया है? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम अपना गेहूं चाहेंगे कि 40 रुपए किलो बिके और रोटी खाना चाहेंगे 10 रुपए की, तो कहाँ मिलेगी आप बताइए? हमारे किसान चाहते हैं कि हम 50 रुपए किलो गेहूं बेचे, और जो खरीदने वाला वो चाहता है मैं 16 रुपए किलो हूँ, तो कहाँ बिके बताइए? कहाँ महंगाई है? जो लोग कहते हैं कि भाजपा चाहिए, कहाँ चाहिए? 2000 रुपए ले रहे हो, वो नहीं 5 किलो राशन लिखा रहे हो, उसका नहीं। तो आप वोट देंगे तो स्मृति ईरानी को देख के देंगे कि मोदी ईरानी को देंगे? मोदी के नाम पे, बिल्कुल। और क्या, 40 रुपए किलो गेहूं बेचोगे, चीनी खाओगे 16 रुपए किलो? सवाल ही नहीं। क्या मोदी जी का आपने नाम लिया तो अच्छा काम किया उन्होंने, देश में अच्छा काम किया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी काम किया, देश बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि लिख के ले लो, इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे, क्या बोलेंगे? अरे मैडम, तय भाजपा जय भाजपा 100%। और क्या, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तो बोला है कि लिख के रख लो, यूपी से हारेंगे। उनको आना होता तो खुद करते, उनको आना होता तो खुद नामांकन करते ना, दूसरों क्यों भेजते? आपको क्यों लगता है राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे? अब उनका कोई पर्सनल मैटर हो गया, इसलिए उन्होंने नहीं नामांकन किया। और क्या बताएं? अच्छा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी यहाँ से अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि अच्छा रुक जाइए, अरे उनसे आप बहस कर रहे हैं, ये बताइए आपको क्या लगता है राहुल गांधी यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे? राहुल गांधी भाग रहे हैं, वायनाड से हार रहे हैं, जो है भाग रहे हैं, इसीलिए तो रायबरेली चले गए। अगर उनको जीतने का पूर्ण होता तो यहाँ आते, अमेठी से लड़ते, भाग के न जाते रायबरेली। वहाँ नहीं जाते, वहाँ हार तो रहे हैं। जो है जो सड़कें थी ना, हाँ बताइए। वो सड़कें, ये यहाँ की जर्जर सड़कें अभी जो है, जो हालत ठीक है वो अभी है। तो राहुल गांधी जब यहाँ से सांसद थे तब यहाँ पे सड़कें डेवलपमेंट कैसा अभी उसकी हालत अच्छे नहीं थे। रायबरेली और अमेठी के बीच में 7 किलोमीटर के रेंज है, और 7 किलोमीटर के रेंज में जो ये गड्ढे थे, उसमें जब गाड़ियां चलती थी ना, तंडोले मंडोले ऐसे हालात थे यहाँ के। अब जब से स्मृति ईरानी, तब से कुछ यहाँ का माहौल अच्छा। तो रोड तब आया है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी थे तब यहाँ पे कुछ काम नहीं, यहाँ की कोई काम नहीं होता, एक भी सड़कें नहीं अच्छी थी। पिछले चुनाव में आप पता कर लीजिए, कोई भी रोड, कोई भी गली, कोई भी, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई, किसी भी रोड पे आप चले जाइए, वारीगंज ले लीजिए, आप रायबरेली ले लीजिए, आप जो है अमेठी ले लीजिए, सारे रोड बिल्कुल डेवलप है। Smriti Irani has well and truly settled in this constituency, going on to also build herself a new home here as well. But has she managed to establish her place in the hearts of the people? So while in Amethi
there are two factors. One, of course, the 2019 shock defeat of Smriti Irani defeating Rahul Gandhi from the Gandhi bastion of Amethi. And the second one of this time around, what's going to happen? Smriti Irani is contesting from the constituency again. But what about the Congress candidate? It's a non-Gandhi contesting from here. What is the impact that it's going to have? Let's speak to a few of the people here. यहाँ पे कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? स्मृति ईरानी ने अच्छा काम किया है या आप चेंज चाहते हैं? हाँ, अच्छा किया है? अच्छा किया। बीजेपी ने अच्छा काम किया है? हाँ। आपको क्या लगता है? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया स्मृति ईरानी पे। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी सड़क भी बनवाई है और बाकी यहाँ से पहले भी सड़क खराब थी, अब पहले से बहुत कुछ बेहतर हुआ है। देश को सुधरने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सुधरेगा। अच्छा, तो आपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत विकास देखा है पिछले 5 सालों में। उसके पहले जब राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे, गांधी परिवार का अमेठी से बहुत बड़ा रिश्ता है। दे हैव बीन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बताइए कि 2019 से पहले यहाँ पे कैसा था सिचुएशन? था, बहुत अच्छा। पहले भी था लेकिन अच्छा था, अब और अच्छा है। टाइम लगेगा, देश सुधरेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? आप यहाँ से ही हैं, कैसा था पहले? आप क्या चाहते हैं कि इस बार बीजेपी कंटिन्यू करे या आपको लगता है कि कांग्रेस वापस आ जाना चाहिए? कांग्रेस वापस आना चाहिए, तो हम लोग तो यही सोचते हैं कांग्रेस वापस आना चाहिए बस। ऐसा क्यों? मोदी हमारे सबके लिए सांड छोड़ दिए हैं, गोरू चल रहे हैं, क्या करें? खेती 5 किलो राशन मिल रहा हो, हमारा नुकसान है लोगों को। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम हुआ है वो नहीं देश की सोच के वोट डालेंगे? मोदी जी के लिए डाल रहे हैं कि वहाँ पे परिवर्तन चाहते हैं कि यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का सोच के वोट डालेंगे? हम लोग क्या बताएं, हमारा सबका तो नुकसान है। अच्छा, नुकसान है, तो यहाँ पे मेन मुद्दे क्या है? अगर सांड छोड़े तो उसके लिए भी कार्रवाई किया गया है। उसके लिए गौशाला बनाया गया है, आप वहाँ पे बंद कीजिए, गौशाला बंद में ले जाइए, सांड को बंद करिए। अगर पहले कटते थे तो आप लोग बोल रहे थे कि सांड कट रहे हैं, गौहत्या हो रही है। पहले तो बिक रहा है तभी। तो आप लोग नहीं बोला था कि ये सांड बिक रहा है, इसको रोकिए। तो विकास यहाँ पे मुद्दा है या आप कह रहे हैं कि जैसे कि पानी और ऐसे जो इश्यूज होते हैं वो है यहाँ पे मेन मुद्दा? मेन मुद्दा यहाँ पे सब कुछ है और क्या कहते हैं, विकास बहुत हुआ है। देश को सुधरने के लिए टाइम लगेगा लेकिन सुधरेगा। Thank you for speaking to us. So many here also continue to be with us, speaking of what are the changes that they're expecting here. चाचा, आप बताइए यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या मेन मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल में काम हुए, इससे खुश है या परिवर्तन चाहते हैं? खुश है। तो क्या बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है? हाँ। स्मृति ईरानी जी को देख के वोट डालेंगे कि मोदी जी? नहीं, स्मृति ईरानी को देख के वोट डालेंगे। अच्छा काम किया है। हाँ। क्या विकास किया है यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी? बहुत किया। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ कितने सालों से हैं? पहले यहाँ 2019 से पहले यहाँ पे कैसा था, कुछ विकास हुआ था? नहीं, पहले नहीं हुआ था, जब से हुआ था। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि गांधी परिवार का बहुत नाम है यहाँ पे, वो 20 साल से यहाँ रह चुके हैं। पहले कैसा था? आपको लगता है कि लोगों को अभी भी लगता है कि गांधी परिवार को होना चाहिए यहाँ से? नहीं, गांधी परिवार जब पहले रहा तो अब नहीं है। अब बीजेपी आई, स्मृति ईरानी आई गई, कि परिवार बढ़ रहा है। हाँ, काम अच्छे काम हो रहा है। परिवर्तन देखा है आपने? हाँ। अच्छा, all right. So some saying that there has been a change here, and that's what we are looking at. Let's speak to a few others as well and find out what they think from the constituency. We'll go around speaking to a few others as well and find out from them what is it that they want in the constituency, a change, or do they want Smriti Irani to continue from here? For a constituency that remains largely dependent on agriculture and livestock, many in this constituency are looking for support from their local MP. The menace for stray cattle has forced farmers to abandon the cultivation of certain crops like pulses and peas. Will these issues still dominate in the 2024 polls? So are the people looking for change? What is it that they're looking for in Amethi? What are the key issues? Let's find out from the voters themselves. आप लोग यहाँ के वोटर्स हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे मेन मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी मुद्दा है, जरूर है, बिल्कुल यकीनी तौर पे है, और विकास का मुद्दा है। ये सब मुद्दे हैं हमारे सामने, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ पे और पूरे देश में बीजेपी या कांग्रेस कौन आना चाहिए? कांग्रेस। ऐसा क्यों? बस कांग्रेस के ऊपर हमें भरोसा है, विकास करेगी, बेरोजगारी कम करेगी। जी, यहाँ पे 2019 से स्मृति ईरानी है, उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे पहले कुछ काम नहीं हुआ था, अब काम होने लगा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गांधी परिवार यहाँ से रिप्रेजेंट कर चुकी है, उन्हीं को वापस आना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे ख्याल तो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। अच्छा काम नहीं हुआ है? नहीं है।
आपको क्या लगता है? नहीं आना चाहिए। नहीं हुआ है तो आप चाहते हैं चेंज यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब गांधी परिवार से कोई हो वैसा चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में? केएल शर्मा जी ठीक है। ठीक है, अच्छा है, अच्छे हैं, बढ़िया। तो सेंटर में भी चेंज करेंगे? इससे पहले तो थे नहीं, करेंगे। हाँ। जी बिल्कुल। तो ऐसे आप बस चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ वापस आए। आपको लगता है कि 2019 से पहले ये गांधी परिवार का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रह चुका है उस हिसाब से यहाँ पे विकास हुआ है कि और होना चाहिए? और होना चाहिए था। हमारे यहाँ के रोड बदहाल हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो ये सब मामला जो लिंक रोड है इनको बनना चाहिए था, नहीं बनी। जी बिल्कुल। आपको लग रहा है कि विकास नहीं हुआ था तो वापस क्यों चाहते हैं उनको? किनको वापस चाहते हैं? कांग्रेस को वापस? नहीं तो इसमें बनना 2019 के बाद की बात आप कर रही है ना? नहीं, मैं पूछ रही हूँ पहले यहाँ पे कैसा था, क्या चेंजेस चाहते हैं यहाँ पे? चेंजेस जो कुछ स्मृति ईरानी ने नहीं किया है उसको केएल शर्मा जी करेंगे, ये उम्मीद रखते हैं हम उनसे। 2019 से पहले हो रहा था? जी बिल्कुल हो रहा था, होती तो होता। और भी बीच का जो विकास रुका ये नहीं रुकना चाहिए था। जी और आगे चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते। जी बिल्कुल। So development and of course unemployment. Many also continue to say that unemployment is one of the biggest issues for us here in the constituency. चलिए यहाँ लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहाँ अमेठी से हैं? सलोन से, रायबरेली से हैं। तो यहाँ पे कैसा इलेक्शन माहौल कैसा लग रहा है आपको? मुझे मालूम नहीं यहाँ का इलेक्शन माहौल, फिलहाल हमारे यहाँ का मालूम है। आपके यहाँ का कुछ नहीं? जी जी, मेरे यहाँ तो बीजेपी कंफर्म है। बीजेपी जी 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 बीजेपी। आप रायबरेली से हैं, वहाँ से तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं? नहीं नहीं जी, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पर हमारे यहाँ स्मृति ईरानी भी और क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी के द्वारा जो है यहाँ बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी की जीत होगी। आपको क्या लगता है? बीजेपी हमारे आप लोगों को क्या लगता है कि कांग्रेस इधर आगे आइए यहाँ अमेठी से कि रायबरेली से? रायबरेली से भी निकलेगी, अमेठी से भी निकलेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? लोग परिवर्तन चाहते हैं? बीजेपी ने किया क्या है, आप बताइए किया क्या है? आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आपके यहाँ पे मेन मुद्दे क्या है? अब देख रहे हैं आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, 50 किलो राशन चढ़ा रहे हैं खेत में। किसान का फायदा है कि उसमें जो है नुकसान है ना किसान का। रात दिन आदमी जो किसान जो है मजदूरी करता है वो मजदूरी करेगा या खेत में रखवाली करेगा। बीजेपी जो है अब की बार बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। अखिलेश राहुल गांधी आ रहे हैं हमारे यहाँ, अमेठी से भी निकलेंगे और यहाँ रायबरेली से भी निकलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे स्मृति ईरानी है, रायबरेली से इस बार राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो फाइट कैसा होगा? जबरदस्त होगा, टक्कर का होगा। टक्कर का होगा, जो वो भी जीतेगी भाजपा? जी 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 बिल्कुल जीतेगी। अच्छा, तो यहाँ से राहुल गांधी ने कहा है कि लिख के रख लो, इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं वापस आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे ये बताइए, वो क्यों नहीं आएंगे? आपको लगता है 400 पार होगा? क्यों नहीं आएंगे? भैया ने बता रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं और मजदूर आदमी काम कर रहे हैं, खेत चरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों नहीं बैठाएंगे। अरे तुम यहाँ से पैदल जाओगे, कुछ भी करो, यहाँ हवाई जहाज भी आ जाएगी, यहाँ हवाई जहाज भी आ जाएगी, उसकी बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा बीजेपी आ जाएगी, आप कह रहे हैं आप तो उनको अपनी गाड़ी में तक नहीं बैठा रहे, ऐसा क्या चेंज हो गया है 5 सालों में? गाड़ी आ जाएगी, किसी कमजोर थोड़ी ना है हम यहाँ, हम भी कार में नहीं बैठाएंगे। अच्छा, तो गाड़ी नहीं बैठाएंगे, उससे एक फायदा नहीं है, आप बीजेपी को चाहते हैं तो उसी के बारे में बात करें। तो ऐसा क्या हो गया 5 सालों में, आप क्या करते हैं? क्या राम मंदिर की बात हो गई या विकास देख रहे हैं देश में? अभी मैं राम मंदिर से ही वापस आ रहा हूँ, अभी राम मंदिर से वापस आ रहा हूँ। अभी हम लोग रुके नाश्ता कर रहे हैं। देश नहीं चलता है, क्यों नहीं? काम भी होना चाहिए। अच्छा, तो राम राज से देश नहीं चलता, काम भी होना चाहिए। आपके हिसाब से राम मंदिर बन गया इसीलिए खुशी है, आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? मैं बचपन में गया था तब कैसा था राम मंदिर, और आज गया तो कैसा है, वो पूरा नजारा ही बदल गया है, तो कुछ न प्रभाव पड़ा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन आप परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, तो some saying that they need some changes here. Some saying, of course, that the Ram Mandir is also going to be one of the issues here when they cast their vote. The Amethi constituency is very, very close to Raebareli, where Rahul Gandhi is contesting from this time around. Interesting battle playing out. People here, of course, continue to think of that emotional connection that they have with the Gandhi family. They continue to say that Gandhi family has been here in the constituency for several decades. Some, in fact, do say that they have not seen much work here, but they still want the Congress party to come here because they want a change across the nation. But in 2024, will it be a battle between Modi and Rahul that will dominate the discourse here in Amethi, or will local issues still dictate terms?
for the first time since 1999, a non-Gandhi Congress leader will be contesting from Amethi. But who will come out on top in this battle for prestige between the BJP and the Congress? You heard it from the candidates and of course the voters as well. And what are the key issues for you as they head into the elections? Are they happy with the work that has been done in the last 5 years or not? That's the big question. We find out tomorrow. We're going to be in Raebareli where we're going to be speaking to the candidates and the voters as well. That's it for now from Amethi. We'll see you tomorrow from Raebareli. Thank you for watching.